It's time for Christmas and I didn't wanted to stay home. And university is also closed. I suddenly planned to go to Prague. Let's go. Literally everyone is gone, no one is in the way because it's Christmas. So I was feeling kind of weird because I am the only one living here. तो मैंने सोचा कि यार let's do it क्योंकि मुझे अकेले रहना नहीं था. So I left my cycle here. It's free cycle for me, free bike. I'll make a separate video for this. I am exactly on time. The tram is already there. भाई यहाँ पे हॉबनॉक के सामने इन लोगों ने क्रिसमस की भी बहुत चीज़ें लगा रखी हैं. Five hours later. I have to take the train to Prague from here and look at the Hobonov. It just looks like a mall. This is Leipzig Hobonov. You can see that. I also posted a short video on YouTube. And this is the Europe's biggest railway station. And this railway station looks like fucking mall. Crazy big, crazy beautiful. So I was at my friend's place. Now I came back to Leipzig Hobonov. It's one of the Europe's biggest station. It was world's biggest railway station. I can't believe Leipzig was a major city of Germany, and from this railway station they also constructed the first longest working railway track between Leipzig and Dresden. They have multiple levels. It's just not the single level. They have multiple levels, like bottom level, top level. So it's crazy big. Also, it was bombed in 1944. And the roofs and everything was collapsed and they reconstructed it again. So this is my train, I guess. 5 hours later. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive. Machine where you can buy the pass, like the tickets, and I'm buying it for 72 hours. This is what the ticket looks like. It costed me around 13 something euros. Okay, so it's pretty chilly. Good that I layered my clothes. Also, I don't know if buying this ticket is a good idea. This costed me 13 euros 66 cents. It's okay for the comfort and for the peace of mind. Let's figure it out what's going on and how everything works. First, I'm heading towards my hostel. It's gonna take me about 20 minutes to reach there. They are doing the city tour as well. Weather is not that good as I have expected it to be, but it's not. Also, आज Christmas है. एंड मे बी सब अपनी फैमिली लाइक 24 दिसंबर है बट सेलिब्रेट लोग आज ही करते हैं. जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं. इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है तभी कोई दिख नहीं रहा. मे बी सब क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे. ठीक है यार, सिटी आई एम नॉट अ वेरी बिग सिटी फैन बॉय, यू नो. मेरे को नेचुरल चीज़ें ज़्यादा करने में मज़ा आता है, बट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिटी में. Just heading towards the hostel. भाई सरप्राइज है सरप्राइज. यहाँ पे आया रिसेप्शन में दोनों बंदे इंडियन. पहचान ही नहीं पहले तो मैंने, एक्सेंट से बिल्कुल पहचान में ही नहीं आया. फिर नीचे बोला कि आज के लिए रात में खाना फ्री है. So I'm just leaving for this walking tour and I'm just totally ready to explore now. But first thing first, I have to go and buy the groceries because today is 24th of December और यहाँ पे 24 दिसंबर को मार्केट जल्दी क्लोज हो जाती हैं. तो सबसे पहले वो काम करते हैं क्योंकि कल के लिए थोड़ा सा मेरे को राशन चाहिए because I don't want to pay extra in going restaurants or something. And the hostel is really nice vibe, really nice place to socialize. वो चेकआउट कर रहे हैं 11 बजे. The tours, the city tour, what they are doing, it's completely tip based. So I thought it's gonna be organized from the hostel. You have to pay something at the end. Checkout करने के बाद cleaning staff वहाँ पे clean करेगा. उसके बाद then I can check in. So I have to wait until then anyways. तो उस टाइम में मैं I was thinking I would
एक्सप्लोर थोड़ा सा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द बिगर सुपरमार्केट्स दोज आर क्लोज, द स्मॉलर वंस, बिकॉज यहाँ पे वियतनामीज कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो एशियन स्टोर्स में जा सकते हो, बट जो बड़े स्टोर्स हैं, लिडल हो गया, टॉस्को हो गया, या फिर बिला हो गया, ऐसे स्टोर्स बड़े जो, तो वो खुले रहेंगे। आई थिंक जितना भी स्टाफ देखा मैंने, सब पूरा स्टाफ हिंदुस्तानी, सब इंडियन है, एंड इट्स वेरी अमेजिंग। बंदा बहुत ही एनर्जेटिक है, लाइक सबसे प्यार से बात कर रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। और मैं अभी यहाँ पे एक बंदे से मिला, टोल्ड मी नॉट टू शो हिज फेस और समथिंग। वो जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए आया था, बट जर्मनी में उसका हुआ नहीं, उसने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करा ली, और अभी वो यहीं पे स्टूडेंट जॉब कर रहा है, यहाँ रिसेप्शन पे इस हॉस्टल में, और यहीं पे अपनी बैचलर्स भी कर रहा है, वो भी इंफॉर्मेटिक में। पहले तो मैं उसका एक्सेंट देख के आई वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि भाई हिंदुस्तानी है ये। फिर पूछा कहाँ से इंडिया में, तो मैं कहा अरे हिंदी। सो डन विद द शॉपिंग। मैंने बहुत जल्दी में चीज़ें ली। आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि क्या लेना है क्या नहीं, जो था वो ले लिया। फनी इंसिडेंट हुआ था हॉस्टल में, लाइक इट्स अ यूरोपियन कंट्री बट दे स्टिल हैव देयर ओन करेंसी, को क्राउन्स बोलते हैं। मेरे से कहता का बिल होगा 1345, मैं ऐसा कुछ, मतलब उसने तो नंबर बोला कुछ, तो मैं भाई 1345 यूरो। मैं तो देख के आया था कि मैंने हाफ पेमेंट कर दी थी और आधी पेमेंट मेरे को वापस देनी थी। 1345 ऐसा करके कुछ यूरो देने में मेरी भाई हालत ख़राब होगी कि क्या बोल रहा है। फिर अच्छा क्राउन्स बोला, बात फिर बोला मैं इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ यूरो में। मैं कहा अच्छा भाई ये बोल रहा है। हाँ पता चला भाई दूसरे देश में हूँ। और जो इनका सुपर मार्केट है, जो यहाँ पे वन ऑफ द फेमस सुपर मार्केट कह सकते हो, उसका नाम है बिल्ला। वहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है, पॉइंट्स कलेक्ट करो तो तुमको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे को ये जो कैशियर थी वहाँ पे कहती तुम्हारे पास बिल्ला कार्ड है। बिल्ला, मैं कहा बिल्ला क्या। राइट नाउ आई एम जस्ट हैविंग सम लंच, आई मेड इट माई सेल्फ। ये वो फायदा होता है हॉस्टल का, दैट यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा। व्हाट अ फैंटा काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट एक्जैक्टली फैंटा बट द लोकल वर्जन, बट इट्स रियली नाइस, रियली ऑरेंजी, एज आई हैड इन क्रोएशिया लास्ट टाइम। इन कंट्रीज में जर्मनी से अच्छी फैंटास मिलती हैं। Tram is so stacked. तो अभी हमारे गाइड ने हमें योहानस केपलर, जिसने ये थ्योरी बताई थी सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, एंड अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। योहानस केपलर was just an assistant of Bra, which was a Danish scientist, और उसने पूरी रिसर्च की थी, सब कुछ किया था, बट जब वो ख़त्म हो गया तो उसका असिस्टेंट योहानस केपलर की सारी रिसर्च ले ली, एंड उसकी रिसर्च से काइंड ऑफ मेड सेंस आउट ऑफ इट। तो तभी उन दोनों का स्टैचू लगा हुआ था। There are 30 bells, they all connected with 2 hammers and they could be played from a piano. And this is the Ministry of Foreign Affairs. And now we are going down. -6 degrees Celsius right now. Amazing. यहाँ तक पहुँच पाऊँगा यार, फिर सोचा ही था, मतलब इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट यहाँ तक आना भी बहुत रेयर लोगों को मौका मिलता है ऐसे घूमने का, जो मर्जी है करने का। फ्रीडम एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आई एम थैंकफुल मैन कि ये सब देखने को मिल रहा है मुझे। पैलेस है, और ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कमांडर्स का घर। किंग वहाँ रहता था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किंग के लिए होती है उसके कमांडर्स, तो उसके कमांडर्स के लिए ये था। द बिल्डिंग इज स्टेट ओन्ड बट दे यूज इट एज अ आर्ट गैलरी। मेरे सामने जो व्यू है, ऐसा व्यू भाई साहब, लेट मी शो यू भाई, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। दिस इज द पैलेस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट दिस। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट दिस इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। एंड दिस टावर बिहाइंड मी, इट्स अ मिनी आईफल टावर।
which they built to copy Eiffel Tower after this expo thing happened in France. Actually, the actual Eiffel Tower in Paris was made due to some expo, and next year the expo was about to happen in Prague. So they started making the mini Eiffel Tower here, and they feel proud because it's actually bigger Eiffel Tower than the France one. Technically, because this Eiffel Tower is on the mountain, and this is 20 meters higher above the sea level than the actual tower what we have in Paris. These guys will be replaced by them. So they replace these two cars, and now these cars will stand here for 2 hours. One interesting fact that their uniforms were made by an Oscar-winning fashion designer. In 1980s, there was a movie and they won 8 Oscars at that time, at that point of time. And this designer team designed this costume, and they have different design in summers. And on the hill here back then were like some bushes and trees, you know, like burning stuff down so you have a space to build. Czech people would call this pražení, so the space that you leave behind after you burn it all down in Czech would be Prague. And that's where एक और चीज़, ये जो चाइनीज़ हैं बहुत ट्रैवल करते हैं. आई डोंट नो अपने इंडिया में से टूर्स क्यों नहीं होते हैं. कोई चाइनीज़ बंदी है वही एक्सप्लेन कर रही है इनको मैंड्रिन वगैरह में. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Crazy beautiful. So it took 585 years to complete this church. Architects are also on this church, man. -6 डिग्री सेल्सियस है. मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि कैमरा बाहर निकालना पड़ रहा है मुझको. प्राग आ रहे हो तो यहाँ नहीं आए, क्या प्राग आए. It's so cold, man. Everyone's kind of just jogging. Look at this relic and everything. It's a whole story. And here the church is being completed. तो स्टोरी क्या है कि शेक में पहले क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे. ये क्रिश्चियन सिर्फ 1100 ईयर्स पहले हुए हैं. प्राग में आपको डिफरेंट लोकेशंस पे गॉडेस ऑफ फायर, गॉडेस ऑफ वाटर, गॉडेस ऑफ विंड या फिर गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ विंड, ये सब मिल जाएंगे. इनको जब कन्वर्ट किया गया तो जर्मन एम्परर ने ये जो रेलिक इनके हाथों में था, जो बॉक्स टाइप का था, ये एज अ गिफ्ट दिया चेक के लोगों को कि भाई तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हो, तुमको ये देता हूँ. ये एक चर्च है. इसके और भी सब चर्चेज है. मतलब जहाँ ये रेलिक जाता है तो अपना नाम छोड़ता जाता है. ऐसी कुछ स्टोरी बताई, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मेरा जो गाइड बता रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर लेना. हम उधर से आ रहे हैं एंड अब ये देखो. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been. He also told why this side is bright and there is black. It's totally because of the directions. Because when sun rays comes, it directly hits here, so that's why it's a little bit brighter. And that side it's more moldy, blackish kind of, you know. Flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I think the tour is about to end, so I gave the money. It was a small amount. पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, फ्रांज काफ्का यहाँ पे आया करते थे क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस होती थी फॉर द राइटिंग. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम देख पा रहे होगे, ये नैरो सी स्ट्रीट है. हम यहाँ चल रहे हैं क्योंकि पीछे किंग्स रहते थे, कैथेड्रल्स थे, यहाँ पे रहते थे पेजेंट्स, यहाँ पे रहते थे नॉर्मल लोग. तभी ये स्ट्रीट नैरो एंड नैरो एंड नैरो होती जा रही है. जब हम आगे से आ रहे थे, जब कैथेड्रल थे, सब कुछ बड़ा बड़ा सा था, सब कुछ बड़ा दिखावटी, मतलब दिखाने के लिए कि इतना बड़ा एम्पायर हमारा ये है वो है. जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमको स्ट्रीट्स नैरो होते हुए दिखती हैं. जैसे क्रिसमस आता है तो यहाँ पे ये लोग कुछ ऐसा स्प्रे लगाते हैं जिससे आप उस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हो. जैसे क्रिसमस की स्मेल को एसोसिएट करते हैं या सिनेमन के साथ, तो सिनेमन की स्मेल का
कुछ तो ये डिफ्यूज़र लगाते हैं और ये लैम्प्स ऑन हो गई हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अभी। यहाँ पे घोस्ट टूर भी होता है कि घोस्ट की स्टोरीज बताएंगे पूरे सिटी में ले जाके। व्हाट आई कैन एंजॉय फ्रॉम हियर इज इनक्रेडिबल गाइस। Never give up on loving you. Can narrow through my heart. Living on to be with you. Yeah, I'm falling like a star. हॉस्टल में लोग फ्री फूड दे रहे हैं अभी। लेट्स सी क्या मिलता है हमको यहाँ पे। Baby, my heart is split in two, and you hold it on too hard. So I'll never give up on loving you. No, I'll never give up on loving you. Let's go. वो पार्टी हो गई। नाउ आई एम लीविंग फॉर समवेयर। भरा हुआ है, क्रेजी फुल है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। फिर से निकल गया हूँ मैं रात के 10 बजे और अब मेरे को डायरेक्ट बस लेनी है यहाँ से। मैं तो देखने जा रहा हूँ ये चार्ली ब्रिज और ये सारे ब्रिज हैं कहाँ पे। अभी मेरे को थोड़ा ओरिएंटेशन का पता चले कि सिटी में क्या ओरिएंटेशन है। कि सिटी थोड़ा शांत हो गया है, सो यू हैव मच मोर टाइम टू रिकॉर्ड, टू टेक शॉट्स, बेटर पिक्चर और समथिंग लाइक दैट। और वो जो इन लोगों ने रेप्लिका बनाया है आईफल टावर का वो है। एंड यहाँ पे मैं आज उस वाले कैथेड्रल में गया था और ये है चार्ल्स ब्रिज। यहाँ पे इन्होंने नीचे बेंचेस वगैरह बना रखी हैं। इतना पीसफुल है यहाँ पे। और पीछे मेरे जो सीनिक व्यू है ना, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, कैमरा तो नहीं कर सकता यार ऑब्वियसली। जो तुम रियल लाइफ में देखते हो चीज़ें, जो ब्यूटी है इस चीज़ की। चलो अभी चार्ल्स ब्रिज पे चलता हूँ, तुमको उसकी स्टोरीज़ बताता हूँ क्या है। अभी जो ये मेरे पीछे ये ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही फेमस ब्रिज है। ये 1357 में बना था। और इसके पहले इसकी जगह एक और ब्रिज हुआ करता था, यूडिथ ब्रिज करके। तो वो वाला ब्रिज कोलैप्स कर गया था किसी रीज़न से। और किंग चार्ल्स द फोर्थ बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस था। उसने आर्कियोलॉजिस्ट को, प्रीस्ट, सबको बुला के एक डेट फाइनल की और वो डेट निकली 1357। तो ये ब्रिज उस ईयर में बना था। एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। चार्ल्स ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में एग्स का यूज़ किया गया था। तो जो विलेजर्स थे उन्होंने एग्स को सीमेंट में मिलाने की जगह बॉईल करके भेज दिया, क्योंकि उनको डर था किंग नाराज़ ना हो जाए हमसे अगर एग्स फूट गए तो उन लोगों ने एग्स को ऐसे रॉ भेजने की जगह बॉईल करके भेज दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाले हैं। नाउ आई विल टेल यू द स्पूकी पार्ट। 1621 के टाइम यहाँ पे 27 रेबेलियंस के सर काट के लटका दिए गए थे। कोई रेबल ना कर पाए। वो सर यहाँ पे 10 सालों तक ऐसे ही लटके रहे ताकि लोग डरे उनसे। और ये मूर्तियाँ लोगों ने बाद में लगाई हैं ताकि लोग आते जाते इन मूर्तियों को प्रे कर सकें। अदरवाइज इसकी थोड़ी डार्क स्टोरी रही है। ये मूर्तियाँ 1700s के टाइम लगी थी। ये इनका पुराना एक ट्रेडिशन भी होता है कि ये एक आदमी होता है, वो यहाँ अपने हाथों से इन गैस लाइट्स को जलाता है। तो इन लोगों ने अब तक इस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा है। कि जैसे जर्मनी में बहुत ज़्यादा टर्किश लोग हैं ना, टर्किश लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वैसे ही चेक रिपब्लिक में वियतनामीज़ लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो जो कियोस्क, मतलब ये जो दुकानें होती है ना साइड में, इंडिया की रेडी टाइप समझ लो, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड रेडी। जर्मनी में टर्किश मोस्टली ओन करते हैं, टर्किश, सीरियन। इंटरेस्टिंग थी तो बता दिया। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting इतने स्टेयर्स चढ़ के आ गए हूँ भाई, और अभी और ऊपर जाना है। यही सेम जगह, सेम व्यू पॉइंट जब दिन में आया था ग्रुप के साथ। इट वॉज सो क्राउडेड। और अभी देखो यहाँ पे टाइम पे आ गया, नहीं तो पीछे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और सिक्योरिटी यहाँ पे, कैथेड्रल बहुत पुराना है, 535 और 85 ईयर्स ओल्ड। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी अंदर बहुत टाइट रहती है। stronger, step by step. The clock is ticking. फाइनली अंदर जा रहे हैं आप।
यूनिक एक्सपीरियंस था भाई। मेरे को ट्रैम लेनी है यहाँ से सीधा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, -6 डिग्री हो रहा है यार। सब निकलने हैं। यंगर जनरेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इसमें, रिलीजियस चीज़ों में। जो बूढ़े बूढ़े से लोग हैं पुराने, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इतनी ठंडी है ना, इसमें हड्डियाँ गल जाएंगी तुम्हारी, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। बट भाई यहाँ से प्राग का व्यू जो आता है इज़ अनमैचेबल। इतना खूबसूरत व्यू।